I think Vinay, we should start. Okay, sir. Thank you. Yeah. So, very good afternoon, everyone, and a very warm welcome to today's exclusive career counseling webinar, Finance Navigator 360. We are thrilled to see so many with enthusiastic students joining us today. So, Akasha. Good afternoon, everyone. I'm Akansha and alongside Vinay. I will be hosting today's session. Good afternoon, this is Akansha and alongside Vinay, I will be co-hosting today's session. Whether you are in class 11, 12 or already pursuing your graduation, this session is designed to help you make informed decision about your career in finance and management. So Vinay, over to you. So, today we are joined by three outstanding mentors, Mr. Dheeraj Mishra, Mr. Sunil Gupta, and Prakash sir, each with a vast experience in guiding students to successful careers. But before we begin hearing from them, we'd like to invite Mr. Prakash sir, founder of Saraf Academy, to formally welcome you all and introduce our speaker for the day. Sir. Thank you, Vinay. Thank you, Dheeraj ji. And thank you, Suraj ji. Thank you, Akansha. The session is mainly designed for helping students to decide in their career what they should be doing in coming 3-4 years. If you are 11th and 12th year student, then you can't do MBA now. If you are interested in MBA, then what you can do now, where you should be joining the college. If you want to do some professional courses which are having value, then what are the options available? Which option is best? If you are already doing graduation in 3rd year of graduation, just graduation is going to complete, then which MBA college or university you should be going? What are the options? And at the same time, I mean to say that key deciding full career path for coming 3-4 years. कि भाई क्या करें जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होए. Before proceeding, just one single question from all everybody who is present in the room. Have you heard about MBA? Who want to become MBA? Just you can chat. Who want to become MBA? Everyone, please chat in the chat box. You can type in your answer in the chat box. Yes. Below chat box, you can type. Who want to become MBA? Hello, friends. Please communicate. Out of all who are present in the room, who wants to become MBA? Maybe you are at 11th, 12th standard. Maybe you are undergraduate. Who wants to become MBA? Nobody is replying. Why I am asking this question? The reason is only one. Answer. Okay. The reason is only one. There are students who will think they have heard about MBA and because of that they want to do MBA. Or the second thing is that actually you have not heard, you have done the research, मेरे को MBA करना है, लेकिन फिर भी आपको कहाँ से करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, क्या ऑप्शन है, कब आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप अभी 11th 12th में हैं तो आपको कॉलेज कहाँ करना चाहिए. हमारा यही पर्पस है. Simple giving you guidance in your career so that you can take call and you can plan your life accordingly and you will be able to get success in your life. So उसके लिए we have one of the most important person, Mr. Dheeraj Mishra ji, and he knows everything in and out, what you should be doing, when you should be doing. He will be helping. And we have Mr. Suraj sir also. And then later on, I will be there to help you, guide you. There will be question answer session also at the end. Whatever your questions, we will deal with each question of everybody. But you need to be there in the webinar from beginning till the end so that you able to resolve your queries and you will be able to take your call, what you should be doing. Okay. So over to Vinay. Start the session. Okay, sir. Akansha, you are mute. Thank you, Prakash sir. Let's begin with our first speaker, Mr. Dheeraj Mishra. He is an MBA in Finance from ISB Kolkata and has worked with HSBC Fund Services before moving into full-time mentoring. So, Vinay.
Every year, Mr. Dheeraj Mishra mentors over 1,000 students and helping them choose the right management programs, whether it's IIMs, BBA, MBA, or professional technical courses. He has been instrumental in shaping careers across India. Over to you, Dheeraj, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sarab sir, for giving me this opportunity to have a small discussion with your students. मैं इस सेशन को थोड़ा सा हिंदी में रखना चाहूंगा बिकॉज मैंने जितने भी सेशन किए हैं ना, मैंने नोटिस करा है कि व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश नॉर्मली स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना ओपन अप नहीं हो पाते, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे आसपास रहते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी. सो आई वुड लव टू कीप दैट इन हिंदी फ्रॉम माय साइड सो दैट इट कैन बिकम मोर इंटरैक्टिव. बिकॉज मैं इस सेशन को नहीं चाहता हूँ कि हम सीनियर्स बोले और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए वो सिर्फ सुने. आई डोंट वांट इट टू बी वन साइडेड कम्युनिकेशन, इट शुड बी बोथ साइडेड कम्युनिकेशन. सो इसलिए आई वुड लव टू टेक इट अप दिस सेशन इन हिंदी ओनली. अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो. आई कैन गो ऑन एंड कंटिन्यू द सेशन इन इंग्लिश एज वेल. बट फॉर से मतलब मेरा प्रायर जो एक्सपीरियंस रहा है फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 years, students are more open when we are communicating with them in English, except the student when I'm communicating with them from South India. So I will start the session. I mean, just guys, let me just give you a brief outline about my profile. Sir ने बताया है. I have done my MBA in the year 2006 और उसके बाद हमने MBA 2018 बैच में करा. ग्रेजुएशन मैं आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, हार्डली 10-15 मिनट में मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा. एंड देन उसके बाद आई वुड लव अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं इसको टेक केयर करने का प्रयास करूँ. सो आई डिड माय एमबीए इन द ईयर 2008-10 इन फाइनेंस एंड देन आई वाज इन बैंगलोर फॉर 1.5 year, joined HSBC कोलकाता, worked there for approximately 4-5 years. और करीब पिछले 10 से 12 सालों से मैं बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए मेंटरशिप दे रहा हूँ. प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब जैसे आप एमबीए की बातें कर लो, बीबीए की बातें कर लो, बीसीए कर लीजिए, एमसीए, बीटेक, जितने ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको कर करके आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए. बिकॉज 140 करोड़ पॉपुलेशन में आज के दिन में एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है दैट लॉट ऑफ पीपल इवन आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन not getting jobs and not getting proper career in professional area. So अगर मैं MBA के बारे में या किसी भी प्रोग्राम BBA BCA प्रोग्राम के बारे में बातें करूं 2025 में, तो जो सिनेरियो आज है 25 साल पहले उल्टा था. आज के कुछ सालों पहले अगर आप MBA होल्डर होते थे या CA होल्डर होते थे तो इट वाज लाइक वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द कंट्री जो हुआ करते थे. आज पर ईयर में सिंस मैं MBA के बच्चों को मेंटरशिप करता रहा हूं पिछले 15 सालों से, तो मेरे ज्यादा एग्जाम्पल्स MBA से ही रहेंगे. पर ईयर करीब 3 लाख बच्चे जो है वो कैट एग्जामिनेशन देते हैं. MBA के लिए मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, मैट, CMAT और काफी सारे एग्जाम्स, करीब 10-11 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं. बट उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है वो होता है कैट, जो IIM कंडक्ट करवाती है. नाउ मैंने नोटिस करा कि पर ईयर करीब 3 लाख बच्चे MBA के लिए एस्पायर करते हैं कैट देकर के, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कैट एग्जामिनेशन नहीं देते हैं. राइट. मैं अपनी खुद की कहानी थोड़ा बताना चाहूंगा. जब मैं 2006 में ग्रेजुएशन किया, आई डिड दैट फ्रॉम साउथ सिटी कॉलेज. द डे आई एम डन विथ माय एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर का जब लास्ट एग्जामिनेशन खत्म हुआ, उस समय हमारे ईयरली सिलेबस हुआ करते थे. जिस समय खत्म हुआ, आई हैड ओनली 2 चॉइस इन माय लाइफ, शुड आई गो फॉर MBA और शुड आई गो फॉर CA. कॉमर्स के लड़कों के पास गिनी चुनी अपॉर्चुनिटी होती है जो जिसके इर्द गिर्द हम लोग बातें करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली. लाइफ में ढेरों ऑप्शंस होते हैं, बट क्योंकि आपका जो आपके आसपास जो लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं करियर स्कोप को लेकर के, उनके पास काफी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है. हर किसी का सौभाग्य नहीं हो पाता है कि ग्रेजुएशन होते ही सराफ सर इस तरह का सेशन कंडक्ट करवा दे और वहां पे हम एक ओपन फोरम मिले जहां पे हम हर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं. ट्रस्ट मी सर, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ एक करें ना, मुझे अच्छा लगेगा. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि 2006 में ना मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ. CA करूँ या ना करूँ, MBA करा जाए कि ना करा जाए तो क्या क्या करना है. हमारे यहाँ ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहा है, अगर हमारे परिवार से कोई MBA नहीं है तो मुझे कोई मेंटरशिप देने वाला नहीं है. मैं 50 गलतियां कर जाऊँ. नहीं पता कि लोन कहाँ से मिलेगा, नहीं पता कि कैट एग्जामिनेशन दूं कि नहीं दूं, किस कोचिंग सेंटर को लिया जाए कैट एग्जामिनेशन के लिए. MBA करे तो किसमें करें, क्योंकि MBA में स्पेशलाइजेशन 50 होते हैं, 4000 MBA कॉलेजेस हैं. सो डिसीजन मेकिंग करना ना वो टफ होता है. ग्रेजुएशन की पहले की जो लाइफ होती है मोस्टली
या प्रोफेशनल कोर्सेज करने के पहले जो लाइफ होती है वो बड़ा सिस्टमैटिक चलता है। 10th कर लिया, 12th करना ही है, एक्सपेक्टेशन है बस फर्स्ट डिवीजन पाना, नौकरी की कोई आकांक्षा नहीं होती 12th में। राइट। फिर पकड़ लो उनमें से कुछ लोग हुए जो ग्रेजुएट हो गए बीकॉम से, आप ग्रेजुएशन तक तो किया, एक्सपेक्टेशन बड़ा क्लियर है कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन पाना है। प्राइमरली उसमें एक माइंडसेट चलता है कि मैं ऑनर्स वाला हूं, मैं नो पास वाला हूं, वो एक माइंडसेट चलता है। और ग्रेजुएशन होने के बाद ना आपके पास एक डॉट लाइन आ जाती है, लाइफ वहां से ना मल्टीपल एंगल लेके चली जाती है। बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफर खत्म होता है, 10th के बाद 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद एक लाइन खुलता है आपका सीए, कॉस्टिंग, सीएस, सीएफए। ये उन बच्चों के लिए होता है जो थोड़ा सा ज्यादा कॉमर्स को अच्छे से समझ पाते हैं, जो थोड़ा सा बैठ करके अपने सम्स को लगाने में ध्यान दे पाते हैं, ये उनके लिए होता है। बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो बोलने में अच्छा होते हैं, उनको उतना बैठना पसंद नहीं है, उनका माइंडसेट है कि दे आर वेरी वेरी आउटस्पोकन, मुझे लगता है उनके लिए एमबीए होता है। सो अगेन वहां भी एक लंबा करियर आपके पास ओपन होता है। एक एमबीए भी आपको उतनी अच्छा करियर दे सकता है जितना बढ़िया एक सीए दे सकता है, इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए होता है जो आपको गाइड करे कि भाई ये काम करो, दिस इज हाउ यू शुड बी प्लानिंग योर एमबीए, जो इन इंडिया बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में कोई बड़े ऐसे नहीं हो जिन्होंने सीए कर रखा हो, जिन्होंने एमबीए कर रखा हो, अगर आपके फैमिली में कोई नहीं है, तो ये डिसीजन लेना भी कि मैं किस कॉलेज से एमबीए करूं, किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करूं कि हमें एक नौकरी मिली जाए 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए महीने की, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ये जैसा आप ग्रेजुएशन के बाद भी देखते होंगे, ढेरों बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई क्या करा जाए, नहीं करा जाए। मैं थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को वापस पुल डाउन करूंगा, जैसे मुझे आपने बताया कि सर ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 11-12 के हैं। सो एमबीए की बारी आती है जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं अपने डिस्कशन को 11-12 के इर्द गिर्द रखने का प्रयास करूंगा। सो एक बच्चा जो 11-12 किया, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई 11-12 के बाद आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेकर के ट्रेडिशनल एजुकेशन को कंटिन्यू करें, जिसमें आप फर्स्ट डिवीजन लाने का प्रयास करेंगे। एंड एक्सपेक्टेशन बड़ा क्लियर होता है कि भाई यहाँ से नौकरी हमें नहीं मिलने वाली है। अगर हम बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन होता है बस पढ़ाई कर ले, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 60-70% आ जाए, उसके बाद सोचेंगे जीवन में क्या करना है। बट अगर आपका डायरेक्शन मूव होता है टुवर्ड्स बीबीए या बीसीए या बीटेक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, आप जैसे इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो एक्सपेक्टेशन होता है कि सर मुझे इसके करने के बाद ही नौकरी चाहिए। सो उसमें भी अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन का चुनाव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इंडिया में बीबीए करवाने वाले भी करीब 5,000 इंस्टीट्यूशन है, सालों में कई 1 लाख बच्चे जो है वो बीबीए करते हैं, बट हर बच्चे को बीबीए करने के बाद या बीसीए करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो कॉलेजेस गलत चुन लेते हैं। मैं यहाँ पे इस फोरम को ज्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस कि भाई इंडिया में 5,000 कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर आप सबको छोड़े जाऊंगा। आप में से जिसको भी किसी को डिटेल में अगर बात करनी हो बीबीए को लेकर के या बीसीए को लेकर के या एनालिटिक्स को लेकर के, एक इमर्जिंग एरिया रहा है जो हमारे टाइम में नहीं था, 2010 में इतना इमर्जिंग नहीं था एनालिटिक्स। आज के दिनों में बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में काफी लोग बातें करते हैं, जैसे बीकॉम एक हो गया, बहुत लोग करते हैं बीएससी इन डेटा साइंस, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। सो इन सारे करियर का जो चुनाव है आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है, आप पास्ट के एकेडमिक में कैसे रहे हैं, आपका मैथ्स अच्छा है या नहीं है। अगर आप डेटा साइंस चुन रहे हो और स्टैटिस्टिक्स में आपको मन नहीं लगता, तो डेटा साइंस में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लाइफ में और भी जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, जिससे जो प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे आप करेंगे, एक्सपेक्टेशन बड़ा क्लियर रहता है कि मुझे नौकरी चाहिए। और ये भी उतनी सत्य बात है, मैं आप सबके फोरम में बताना चाहूंगा कि हर बच्चा जो बीबीए या बीसीए करता है उसको नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं, जहां पे पढ़ाई अच्छी हो, जहां पे रिक्रूटर्स आते हो, उन्हीं कॉलेजेस से बीबीए या बीसीए या बीएससी डेटा साइंस, किसी भी इस तरह का प्रोग्राम को करना ठीक रहेगा। सो सर, अगर आप और कुछ चाहें, इफ यू वांट मी टू पुट अप सम पॉइंट ऑन सर्टेन एरियाज, आई वुड मोर देन हैप्पी। जस्ट सर थोड़ा सा इस, मान लीजिए 11-12 का स्टूडेंट है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है जी, सब तीनों एक ही है, तो उन लोगों के लिए टारगेट है एमबीए करना। अब उसको जी, एमबीए बाद में वो क्या स्ट्रीम में करेगा वो नहीं मालूम है, राइट। लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन है जो वो कर सकता है, कुछ अलग से पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? सो मैं बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को प्लान करना है एमबीए को लेकर के, बच्चे के पास 3 साल का ऑप्शन होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो पहले फर्स्ट ईयर में फोकस करिए बीकॉम के स्टडी पे या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड ईयर ऑनवर्ड आप कैट की तैयारी में लग सकते हैं।
जिसमें ज्यादातर फेमस इंस्टीट्यूशंस कलकत्ता में है, टाइम, IMS, करियर लॉन्चर, ये थोड़े फेमस है। इनके अलावा भी काफी सारे कोचिंग सेंटर हैं, आई क्वांटा के नाम पे है, फिजिक्स वाला है, और इस तरह के बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जो आपको कैट की तैयारी करवाता है। पहले काफी सारे कैट के कोचिंग सेंटर जो टाइम, IMS, करियर लॉन्चर, इनके खर्चे बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, 70,000 80,000 रुपया कैट की तैयारी के लिए करते हैं। मेरा सजेशन बच्चों के साथ ये होता है कि जैसे आप सेकंड ईयर में जाते हो, आप 50-60%, 70% फोकस रखो अपने बीकॉम के ऊपर, 20-30% फोकस करो कैट के ऊपर। सेकंड ईयर में ही आप एक बार कैट देके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में हम कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, मेरा स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप पहली बार कैट दिए और आपकी कैट की परसेंटाइल सेकंड ईयर में जब आप बीकॉम में होते हो आपकी परसेंटाइल आ गई 30, तो आपको ये चीज क्लियर समझ जाना चाहिए कि भाई कैट मेरे पाले का चीज नहीं है। अच्छा। जैसे मेरे सिनेरियो थे, आई वाज वेरी गुड इन कॉमर्स, मुझे कॉमर्स समझ में आता था, रिलेट कर पाता था, बट मैथ्स में कभी नहीं समझ में आया कि A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाइफ में कहाँ लगने वाला है। सो आज तक मैं जिंदगी भर MBA भी कर गया लेकिन मैथ्स में भागता ही रहा। अच्छा। सो आई 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 ऑलवेज एडवाइज माय स्टूडेंट्स कि भाई अगर तेरे को मैथ से डर लगता है ना तो कैट के पीछे मत भाग, क्योंकि कैट और मैट का काम है आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा देना, उसका प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है मेरी कैट में 80 हो, आपकी कैट में 60 हो, लेकिन प्लेसमेंट आपकी ज्यादा अच्छी हो जाए क्योंकि आप MBA को अच्छे से समझ पाए। कैट का रोल ये होता है कि आपको वो कॉलेज तक पहुंचा दे। अगर आपकी कैट की परसेंटाइल अच्छी रही, यू विल एंड अप गेटिंग अ गुड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर आपकी परसेंटाइल कम रही तो आपको थोड़े कमजोर कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन अंदर जब आप MBA की पढ़ाई चालू करेंगे वहां पे बीकॉम के सिलेबस के इर्द गिर्द की चीजें काफी पढ़ाई जाती है। आप यहाँ पे जो IFS पढ़ते हैं या जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या जो भी बीकॉम का सिलेबस का 60% चीजें वहां पढ़ाई होता है। बट अगर कैट को देखा जाए तो वहां पे आपको बेसिकली मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, वो मैथ्स जो हम 10th में पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वैल्यू, परसेंटेज, ये वो जो सारी चीजें। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10th तक मैथ से डर लगते रहता है, पढ़ाई में वो थोड़े से मैथ्स में कमजोर है, बाकी पेपर उनका अच्छा रहा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो कॉमर्स काफी अच्छा पढ़ते हैं बट मैथ्स बस वो इसलिए पढ़ते हैं कि सर पास हो जाए, बस 30 स्कोर आ जाए, पास हो जाए, बस फेल ना हो, इस कारण से उनका मैथ्स का प्यार है। ओके। उस लड़के को कैट को बार बार ट्राई नहीं करना चाहिए, वो चाहे एक बार तैयारी करे, 2 बार करे, 3 बार करे, वो कैट में 10 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल ऊपर नीचे ही लाएगा। उस स्टूडेंट को कैट अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई एवरेज कॉलेजेस जहां पे 7-8 लाख का प्लेसमेंट मिले वो कॉलेज फोकस करना चाहिए, और वो अपने स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करे। पकड़ लीजिए मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं कैट बार बार दे रहा हूँ, मेरी कैट में 40-50 आ रही है, तो मैं 5 बार भी कैट दूंगा तो मैं 99 नहीं लाने वाला हूँ, ये बड़ा क्लियर से फंडा है, क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है। प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम कैट की नहीं है, कैट का तो स्टैंडर्ड वही है, मेरी मैथ्स कमजोर है और मैं मैथ्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे मन में डर बैठ गया है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तू खाली अटेम्प्ट कर कैट, 40-50-60 परसेंटाइल जो भी आता है, आप अपना फोकस करो जो कंपनी को रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए होता है। जैसे एक्सेल, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, पकड़ लीजिए गोल्डमैन सैक्स हो, नॉर्दर्न ट्रस्ट हो, HSBC हो, डिलॉयट हो, PwC हो, इन कंपनियों को जो स्किल चाहिए होता है उनमें से एक चीज होता है एक्सेल। तो एक्सेल का कैट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं कैट अच्छा नहीं कर सकता बट मैं एक्सेल अच्छा सीख सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश को ठीक कर सकता हूँ, राइट। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम इन एरियाज पे फोकस करो जिनमें तुम अच्छा कर सकते हो। कैट का काम था आपको कॉलेज तक ला देना, बट कॉलेज में लाने के मतलब ये नहीं कि कोई कैट 80 वाला बच्चा है तो उसको 15 लाख की नौकरी मिलेगी। IIMs के बच्चों के विषय में बता दूं, हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IIM से पास आउट है बट उनकी प्लेसमेंट सिर्फ 8 लाख रुपए की लगी, जबकि IIM की एवरेज प्लेसमेंट जाती है 25 लाख के आसपास। ओके। तो वहां का कमजोर बच्चे को भी प्लेसमेंट कम लगता है, और अगर आप किसी ठीक ठाक भी स्कूल में जाते हो और आप अगर एफर्ट डालते हैं उन स्किल्स के ऊपर जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है, ब्लूमबर्ग सीखना एक स्किल्स होता है, अगर आपका कॉलेज वैसा हो जो ब्लूमबर्ग रखता हो टर्मिनल, फिनांस में काफी हेल्प मिलेगा। एक्सेल का नॉलेज आपको हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल का ये हो जाए, और काफी सारे ऐसे साइट है जहां से आप फ्री सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हो, पाइथन के ऊपर, SQL के ऊपर, टैब्ल्यू के ऊपर, मतलब ये एनालिटिक्स के छोटे छोटे सर्टिफिकेशन। तो अगर आप इन सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं तो आप विदाउट कैट भी यू विल एंड अप गेटिंग अ डिसेंट पैकेज एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। डिसेंट पैकेज का मतलब, मेरा बोलने का मतलब 10 लाख 12 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर है। सो वैसे कैट की प्रिपरेशन सेकंड ईयर से इंसान को करनी चाहिए ताकि आप 2 साल दे पाओ कैट। पहला बार कैट दिया, आपको लगा यार अच्छा दे नहीं पाया, वापस आप एक बार कैट अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हो। क्योंकि आइडियली बच्चा क्या करता है, मेजोरिटी स्टूडेंट जो थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन देता है उसी साल वो कैट देता है, और जिस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके ठीक अगले साल MBA में एडमिशन कर लेता है। बच्चे गैप नहीं लेते हैं।
कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पकड़ लीजिए ग्रेजुएशन 2025 में किया, 2026 में एमबीए करेंगे, बट मेजोरिटी बच्चे वैसे होते हैं कि 2025 में उनकी ग्रेजुएशन हो रही है और 2025 में ही वो एमबीए करेंगे। तो ये 25 के बच्चे 24 में भी कैट देंगे, 23 में भी कैट देंगे। जब 2 बार कैट दे लिया और दोनों बार आपकी कैट परसेंटाइल 40 से 50 आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कैट में आप अच्छा करने का प्रयास करना छोड़ दीजिए। आप एक डिसेंट बी स्कूल की तलाश करिए जो 40 परसेंटाइल में आपको देता है, और वहां पे जाकर के आप एफर्ट करिए कि भाई उस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट तो 8 लाख रुपए का है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी प्लेसमेंट 12 लाख की लग जाए। तो हम बताते हैं कि भाई अगला जो 3 4 5 महीना आपके पास है, बार बार कैट मत देते रहो, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस कर नहीं रहे हो। आप टाइम में इस बार गए, अगले साल करियर लॉन्चर में चले गए, फिर अगले साल आईएमएस में चले गए, फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम 10th के टाइम में रही है, आपने मैथ्स 10th में ढंग से नहीं पढ़ा था और अभी भी प्रयास नहीं करो 10th में वापस जाने का, राइट। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे को कम से कम 1 2 साल देना चाहिए कैट के साथ साथ में। यानी कि अपने नटसेल में ये बोल सकते हैं कि अगर अपने को एमबीए करना है, कैट वगैरह में जाना है, जी। तो उसका प्रिपरेशन मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड ईयर बीकॉम में होएगा। 11th 12th में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं है। 11th 12th में आप ये कर सकते हैं कि अपना मैथ्स और इंग्लिश जितना स्ट्रांग कर पाए वो बेटर होएगा, बिकॉज बिल्कुल। बाद में आपको फाउंडेशन देगा। True. और अगर 11th 12th में आपको मालूम है कि आपका मैथ्स खराब ही है, तो आप पहले से ही प्लान कर लीजिए कि आपको कैट फैट में जाना ही नहीं है, राइट। कि वो आपसे होने वाला ही नहीं है, तो उस दिशा में जाके फायदा क्या है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लास्ट, क्या 11th 12th में साइंस वाला जो बच्चा लोग है वो लोग एमबीए करने के लिए ज्यादा इक्विप्ड होता है कि कॉमर्स वाला बच्चा लोग, ऐसा कुछ है क्या? सो अगर आप सिलेबस के बारे में बात है, 2 अलग अलग चीजें चलती है, एक है आपका कैट मैट की तैयारी और एक है एमबीए का सिलेबस। एमबीए का सिलेबस ज्यादा रेलेवेंट होगा बीकॉम वाले बच्चों के साथ। ओके। जो फिनांस आप यहाँ पढ़ते हैं, जो अकाउंट से आप यहाँ पे पढ़ते हैं, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पढ़ते हैं, वो सारी चीजें 70 to 80% वहां पे रिलेवेंट आपको मिलेगी। हाँ, यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो नंबर पाने की रेस में है, वहां पे आपका माइंडसेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप चीजों को समझना चालू कर दोगे। यहाँ बैलेंस शीट बनाना सीखे, वहां बैलेंस शीट को समझ रहे हो आप बेसिकली कि भाई एक्स कंपनी के बैलेंस शीट और वाई कंपनी के बैलेंस शीट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग लेवल एज के साथ साथ कुछ मैच्योरिटी भी आती है। अब ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से पास आउट है वो भी कैट में अच्छा नहीं कर पा रहे, बिकॉज Okay. कैट की जो मतलब डिफिकल्टी लेवल है ना, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। अगर आप टॉप 10 एग्जामिनेशन इंडिया के निकाले, उनमें से एक कैट एग्जामिनेशन भी आता है। अब वो उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा मैथ्स को लेकर के ज्यादा अटैच्ड होते हैं। मैं वो साइंस और कॉमर्स वाइज डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसा भी रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसी है जो ज्योग्राफी से बीकॉम की है या बीबीए की है और उसकी मैथ्स काफी अच्छी रही है। सो मैं रेदर बोलूंगा कैट के ऊपर फोकस मैथ्स का बेस पे होना चाहिए और इंग्लिश के बेस पे होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी रही है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप दोनों से भागते रहे हो तो कैट को बस प्रणाम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू सर, क्योंकि हम लोग को ये गाइडेंस ये था कि अगर 10 11 या 12 है या फर्स्ट ईयर है तो अगर उसको एमबीए करना है, बिकॉज जनरली किसी से भी बात करते हैं ना सर, उसका मम्मी पापा यही बोलते हैं सर बच्चे को एमबीए कराना है। जी। मालूम कुछ भी नहीं है सर, एमबीए एक वर्ड समझ लिए हैं, एमबीए कराना है, पता ही नहीं है कौन सा यूनिवर्सिटी है क्या है उसके लिए भी। तो एक गाइडेंस ये समझ में आता है कि 11 12 में क्या करना है, मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए, उसको इंप्रूव करना है, तो आगे जाके आप कैट वगैरह देकर एमबीए कर सकते हैं, अदरवाइज Right. नहीं। और 11 12 में जनरली कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, जनरली ऐसा मान के चल रहे हैं। ट्रू ट्रू। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा कि क्या क्या प्रोफेशनल कोर्स 11 12 में भी है। लेकिन एक बार मान लीजिए, अगर जिसको एमबीए वगैरह देना है उसको अपना मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग करना है, 11 12 में अलग से कुछ करने की और कोई बात नहीं है, ठीक है ना? वेरी और मच। कोई एडवाइस है कि सर कॉलेज वगैरह कौन सा जाना चाहिए? मान लीजिए कैलकाटा में है, अपने एग्जाम्पल ले। राइट। सो सर मैं यहाँ पे एक इनपुट दूंगा। देखिए, एक कॉलेज को ना हम लोग टीयर में बांट सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। एक ही पर्टिकुलर बी स्कूल हो सकता है आपके लिए बढ़िया हो, मेरे लिए खराब हो, वो कॉलेज वही है। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। हम जब किसी बच्चे को कॉलेज सजेस्ट करते हैं तो पहले उसका स्किल चेक करते हैं। एक बच्चा है जिसको इंग्लिश में डर लगता है, आप उसको अगर आई एम कलकत्ता भेज देते हो मर जाएगा बेचारा। आई एम कलकत्ता खराब नहीं है, वो बच्चा उसके लिए कमजोर है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट हम लोग प्रयास क्या करते हैं, सर उस कॉलेज भेजवा दो जहाँ पे 25 लाख की प्लेसमेंट लगती है। वो 25 लाख वाले कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आईक्यू लेवल जो होती है ना, और जो बच्चे कैट में थोड़ा सा एवरेज रहे हैं उनकी आईक्यू लेवल में डिफरेंस है। आईआईएम में पर डे बच्चों को 150 पेजेस का केस स्टडी पढ़ के जाना होता है, क्योंकि अगले दिनों केस स्टडी डिस्कस होने वाली है।
तो बैठ करके एक बच्चा होता है जिसको एक एक वर्ड पढ़ने की आदत होती है, आयम्स के बच्चे एक ग्लांस लेते हैं और अगले पेज में जाते हैं। वो 2 से ढाई घंटे में पूरा का पूरा 150 पन्ना पढ़ लेता है और अगले दिन मेंटली रेडी होता है कि क्या डिस्कशन करता है। अगर बच्चा हमारा एवरेज है, मतलब 3 तरह के होते हैं। एक बच्चा होता है जो सर पढ़ने के लिए पढ़ा है बस, मतलब उसका पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं रहा है, ही शुड नॉट बी लुकिंग एट आयम। आयम खराब नहीं है, बच्चे के लिए ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। जैसे हम चाय पी रहे हैं, अगर इसमें 5 चीनी चम्मच डाल दे, मतलब 5 चम्मच डाल दे चीनी, तो ये चाय बेकार हो जाएगी हमारी। आइडियल मात्रा में होना चाहिए। तो अगर बच्चा कमजोर है, कॉलेज अच्छा है, वो भी डेंजरस है, वो ज्यादा डेंजरस है। वैसे ही खराब कॉलेज का चुनाव भी डेंजरस है। बच्चा अच्छा है लेकिन खराब कॉलेज का चुनाव अच्छा है। तो हम बच्चों के साथ ये बोलते हैं कि भाई आप मेरे पास बैठो, मैं आपके कुछ कुछ स्किल्स देखता हूँ। हम उनका ना एक प्रोफाइलिंग सेशन करवाते हैं किसी भी बच्चे के लिए, कि आपकी 10th कैसी रही, 12th कैसी रही, ग्रेजुएशन कैसा रहा, मैथ्स अच्छा है कि नहीं है, पापा का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, राइट। आपको कॉमर्स में ज्यादा मजा आता है कि मैथ्स में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि एमबीए के अंदर डाइवर्स फील्ड है, ठीक है ना। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, जैसे एक डॉक्टर कैसे, पकड़ लीजिए मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर है आप, आपको मैं बोलूंगा सर मेरे को बुखार है, तो आप बेसिकली पैरासीटामोल जरूर देंगे, लेकिन कोई सीरियस एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा जब तक मेरा ब्लड टेस्ट होके नहीं आएगा। तो हमारा जो प्रोफाइलिंग सेशन है वो बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर बच्चा मेरा कमजोर है तो एक ऐसा कॉलेज जो अच्छा है वो उसके लिए खराब हो। तो हम बच्चे का स्किल सेट के बेस पे कॉलेज को बोलते हैं अच्छा या खराब। अगर बच्चा कमजोर है, 10th 12th ग्रेजुएशन एवरेज है, और पकड़ लीजिए कलकत्ता में कॉलेज प्रैक्सिस है जहाँ पे फैकल्टी हिंदी बोलते ही नहीं, अब वो बच्चा कॉलेज तो अच्छा है बट वहां जाकर चुपचाप बैठा रहेगा। और एमबीए इज नॉट ऑल अबाउट कि सर आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, वो ऐसा नहीं होता। एमबीए में हम दोनों को डिस्कशन करना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड और फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आपकी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कम है, बट देन आई हैव ऑल द राइट टू डिस्कस एंड डिबेट विथ यू कि नहीं सर ये आपका लॉजिक है, मेरा लॉजिक ये। सो अगर वो बच्चा जो इंग्लिश से डर रहा है, प्रैक्सिस नाम का बी स्कूल उसके लिए डेंजरस है। कॉलेज खराब नहीं है, मेरा बच्चा उसके लिए सही नहीं था, उसके लिए हम कोई और कॉलेज बताएंगे। तो हम पहले डिसाइड करते हैं जो बच्चा हमारे सामने बैठा है उसकी प्लेसेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है। अगर मुझे लगा कि भाई बच्चे का प्लेसमेंट कैपेसिटी 5 लाख का है तो उसके लिए अलग 20 स्कूल से। अगर मुझे लगा कि सामने वाला बच्चा मेहनत कर करके 7-8 लाख तक चला जाएगा, उसके लिए अलग कॉलेजेस है। अगर बच्चे में बहुत ज्यादा दम रहा, मुझे लगा ये 15-17 लाख या 20 लाख का प्लेसमेंट लाने वाला रहा, उसके लिए कॉलेजेस अलग है। सो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन अपना एग्जिस्टिंग स्किल्स के ऊपर। ये मेरा ओपिनियन था। दैट्स हाउ आई टेक अ डिसीजन। आई हैव बीन टेकिंग डिसीजन फॉर लास्ट 10 years सर। जस्ट इतना ही बोलूंगा, ये सब जो नॉलेज आप दे रहे हैं हम लोग को जनरली पता नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाते हैं ना। आप लोग जब यही डील कर रहे हैं 10-12 साल से, हजारों बच्चों को देखते हैं, तो फ्यूचर में भी अगर कोई भी स्टूडेंट जो अभी क्लास में है और कोई उनको हेल्प चाहिए तो धीरज जी ऑलवेज देयर, एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ हिम whenever you have queries or you want help, then he is always there. और हम लोग को भी अगर कोई हेल्प चाहिएगा तो हम लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे किसी भी बच्चों के लिए, क्योंकि अपना Anytime. पर्पस ही है उनको हेल्प करना सर। Right. एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई विल से, अगर आप ऑलरेडी पॉसिबल है तो आप रह सकते हैं मीटिंग में, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा मीटिंग वगैरह है आप निकल भी सकते हो, क्योंकि मेरे को आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो नॉलेज था, ये चाहिए था जो हम लोग सबके साथ शेयर कर सकें। सो इफ यू आर देयर it's okay, but if you have another meeting you can also leave sir, but thank you for attending this event. Vinay, ऑनर्ड सर, ऑनर्ड, थैंक यू Yes, सो मच। I अगर आप सब में से definitely- किसी को कोई क्वेरी है एमबीए को लेकर के सर के वही। पास से हम अगर यहाँ पे अभी मौजूद कोई भी स्टूडेंट है हमारा वो नंबर अवेलेबल हो पूछना है, जाएगा। शुड आई ड्रॉप माय नंबर ऑन मीटिंग और शुड आई, वो आपसे ले लेंगे सर। आप सर बोलिए सर। शुड आई ड्रॉप माय नंबर इन द मैसेज, और वो बच्चों को बोलूंगा आपसे ले लेने के लिए। You can write number sir here, टाइप कर दीजिए, अपने आप वो लोग लिख लेंगे, ठीक रहेगा। अगर किसी को क्वेरी हो, एक रिक्वेस्ट कोई भूल रहेगा, जाएगा मैं कम्युनिकेट करा दूंगा, कोई टेंशन Right. नहीं। हाँ, सिंस आई एम एंगेज विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों में से अगर कोई मेरे से बात करना चाहे मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर करें, क्योंकि मेरा कॉल फ्रीक्वेंट बिजी रहता है। यस यस, डिस्कशन कभी हाँ। बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाते हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर करिएगा। साथ में मुझे अगर आप 12 के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, सर का नाम जरूर मुझे रिमाइंडर दीजिएगा, सराब सर के बारे में। दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। मेरी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है यार, मैं पर डे कम से कम 25-30 बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ बिग नंबर। जब भी आप मेरे से कोई क्वेरी करते हो जरूर बोलेगा सर मैंने आपका सराब सर वाला सेशन अटेंड किया था, और देन we will be more comfortable talking to each other. Thank you so much. थैंक यू सर। सैकत, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन लेटर है, जो सैकत ने पूछा मैं जवाब दे पाऊंगा सर, चलेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। या Nice, sir. okay.
Thank you for your wonderful information that you shared with all of us. So, Akansha. So, thank you, Kirit sir. That was extremely helpful. Our next speaker is Suraj Kumar Gupta, an honors graduate from S.A. Jaipuriya College and a postgraduate from the University of Calcutta in Accounts and Finance. So, Vinay, it's over. A to you. rank holder throughout his school and college years, he worked with top corporates including KPMG and has mentored hundreds of students in their finance careers in 2010. Over to you, Suraj sir. Thank you so much, Akanksha and Vinay, for giving me this opportunity. आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया. जस्ट मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा. आई रन माई ओन कोचिंग क्लासेस इन कोलकाता वेर आई mentor class 11, 12 and graduation students, and I have been teaching since 2010 after completing my graduation. So this is basically my current business profile. सबसे पहले क्योंकि ये सेशन कैरियर के बारे में है, तो जब हम लोग बोलते हैं कैरियर, सो व्हाट is the meaning of career? First of all, we will have to understand that career is not a short term event. When we decide about career, it is a very long term decision of our life which is going to affect major part of our life. तो जब हम लोग कैरियर बोलते हैं तो कैरियर की डिसीजन बेसिकली दो क्रूशियल मोमेंट आते हैं हमारे लाइफ में जब हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, एक क्लास 10 के बाद और एक क्लास 12 के बाद. तो क्लास 10 के बाद जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे. पहले तो जैसे स्ट्रीम होते थे कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन स्टूडेंट अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई साइंस के सब्जेक्ट के साथ आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के साथ आप कॉमर्स या साइंस को भी पढ़ सकते हो. तो ये फ्रीडम लिबर्टी अभी मिल गई है स्टूडेंट्स को. लेकिन अगेन हमें जो मिल गया है ऑप्शन वो एक अलग बात है, पर हमें ऑप्शन अवेल क्या करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर हमें किसी हम लोग बुफे में जाते हैं, किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पर एक बुफे में बहुत सारे डिशेज लगे हुए हैं, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब नूडल्स के साथ हम लोग सांभर मिला कर खाएंगे, क्योंकि हमें प्लेटर में वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ. वी मस्ट नो कि किस चीज़ के साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हमें खाना चाहिए. तो नूडल्स के साथ हम लोग मंचूरियन लेंगे, मे बी सांभर के साथ हम लोग डोसा या इडली ऐसा कुछ लेंगे. तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं स्कूल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा डील करता हूँ, हमारे पास क्लास 11, 12 पे काफ़ी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होती है डेली बेसिस पे. तो मैं देखता हूँ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑड कॉम्बिनेशन है. जैसे कि कोई कॉमर्स ले रहा है पर उसने अकाउंटेंसी को नहीं लिया, अकाउंटेंसी को छोड़कर कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट ले लिए और अकाउंटेंसी को रिप्लेस किया उन्होंने या तो फिजिक्स से या तो ज्योग्राफी से, इस तरह के किसी सब्जेक्ट से. जब मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ या पेरेंट को बोलता हूँ कि सर आप कॉमर्स करा रहे हो बच्चों को, लेकिन आपने कॉमर्स का जो मेन कोर सब्जेक्ट है लाइक अकाउंटेंसी, आप ये क्यों नहीं दिलवा रहे हो? तो पेरेंट्स अपने हिसाब से कुछ अपना रीज़न देते हैं, बच्चे अपने हिसाब से देते हैं. रिसेंटली एक बच्चे ने बोला कि सर आई एम चूजिंग ज्योग्राफी बिकॉज आई लाइक ज्योग्राफी. तो ये अब बच्चे ने बोला, मैंने पेरेंट्स से पूछा कि ठीक है सर, स्टूडेंट तो अभी 14-15 साल 16 साल का है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने के बाद 15 से 16 साल के अप्रॉक्सीमेटली एज होती है बच्चों की, तो वो उतने कैपेबल नहीं होते, उन्हें पता नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो एक अलग बात है, पर मुझे लाइफ में जो करना है वो अलग बात है. किसी को डांस पसंद हो सकता है, किसी को ड्राइंग पसंद हो सकता है, किसी को पेंटिंग पसंद हो सकता है, किसी को इंस्टाग्राम पे रील बनाना पसंद हो सकता है. सो लाइकिंग एंड हॉबीज आर डिफरेंट थिंग. योर इंटरेस्ट एंड हॉबी आर डिफरेंट बट योर कैरियर पर्सपेक्टिव आर डिफरेंट. तो अगर कोई इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि मेरी जो हॉबीज हैं, जो इंटरेस्ट हैं वो अलग होने चाहिए और मेरे कैरियर एस्पिरेशंस अलग होने चाहिए, फ्यूचर में क्या करना है वो अलग, वो अपने लाइकिंग के बेसिस पे अगर डिसीजन लेगा, किसी को डांस पसंद है तो वो सोचेगा डांसर बन जाए, किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटर बन जाए, इस तरीके से वो कैरियर का डिसीजन लेगा, इसका मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. तो मैं पेरेंट्स को जब ये चीजें समझाता हूँ तो कभी कभी पेरेंट्स को लगता है सूरज सर क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसलिए परसुएट करें ताकि बच्चा ले आपके सब्जेक्ट को, आपका बिजनेस बढ़े. तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ एडमिशन एंड जस्ट फॉर बिजनेस पर्पज. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट लाइफ में आगे जाकर किसी भी कैरियर ऑप्शन को परस्यू करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे फाइनेंशियल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, उसे फाइनेंशियल्स के साथ डील करना पड़ेगा, और इसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से अगर फंडामेंटल किसी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वो किसी भी पर्सपेक्टिव, किसी भी कैरियर ऑप्शन को बाद में चूज कर ले, वो बच नहीं पाएगा. जैसे किसी बड़े से बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके सबसे पहले फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है. अगर फाउंडेशन वीक है
तो जितनी भी बड़ी ऊपर सुपर स्ट्रक्चर हम लोग बना ले, जितना भी खूबसूरत डिजाइनर बिल्डिंग बना दे, एक हल्का सा भी अगर भूकंप आ गया ना, जो कि आते रहते हैं आजकल, ठीक है, तो बिल्डिंग का पूरा ढांचा, डिजाइन, सब कुछ टूट जाएगा। ऊपर है ना बहुत सारे रूफ टॉप और स्विमिंग पूल, आप तो देख ही रहे हैं, सब दुनिया भर में चल रहा है। तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट कि ऊपर का सुपर बिल्टअप बस बढ़िया डिजाइनर और एकदम खूबसूरत होना चाहिए, बल्कि अंदर का फाउंडेशन भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट को सबसे पहला कैरियर का डिसीजन क्लास 10 के बाद लेना चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। अब यहाँ पर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट क्लास 10 पास करता है, उसकी एज 15-16 साल की होती है, वो खुद में इतने कैपेबल नहीं होते, इतने मेच्योर्ड नहीं होते हैं कि अपने लाइफ का डिसीजन खुद से ले सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि पेरेंट को भी बच्चों को देखना चाहिए कि किस डिसीजन में क्या सब्जेक्ट उन्हें देना है, क्या स्ट्रीम करवाना है, क्या कॉम्बिनेशन उनके होने चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि पेरेंट्स भी कभी कभी यहाँ पर बच्चों को ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जो चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से बात करूंगा। यहाँ पर नॉर्मली क्लास 10 के बाद बच्चों को क्या दिलाना है, इसकी जो बेसिस होती है, पेरेंट्स जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं वो क्या है कि हमारे नेबरहुड में कोई क्या कर रहा है, हमारे रिलेटिव में कोई क्या कर रहा है। मतलब उन्हें ये मतलब नहीं है कि बच्चे की पोटेंशियल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सबसे कोई खास मतलब होता नहीं है। सभी को लगता है जैसे नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस लेकर पढ़े, बच्चा भी चाहता है कि मैं साइंस लेकर पढूं, मैं किसी बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट का बैग लेकर घूमूं, टी शर्ट पहन के घूमूं, ताकि सोसाइटी में लगे कि हाँ मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं बीटेक या नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो जेई नीट का जो एक मार्केट में क्रेज, एक कमर्शलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी के अंदर एक साइंस का एक बहुत ज़्यादा क्रेज है। और साथ ही साथ वो लोग कॉमर्स के स्ट्रीम को काफ़ी डिमीन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कॉमर्स तो कमज़ोर बच्चों के लिए है। और कहीं इसका एक और भी रीज़न है कि वो लोग अवेयर नहीं है कॉमर्स के जो फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्हें लगता है जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जबकि ये भी गलत है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने लेवल पे अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें खुद भी जानकारी लेनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या-क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इकोनॉमी में सिर्फ, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमी मीन्स द एंटायर एनवायरनमेंट। तो वी डोंट ओनली नीड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वी नीड मैनेजर्स, वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन इज द क्रिएटिविटी ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन इसे बनाने वाली जो मोबाइल फोन कंपनी है, जैसे वो क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है, उनको मैनेज करने वाले लोग वो मैनेजर्स है। इसी तरह से जो डॉक्टर्स है वो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट है, लेकिन वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के जो ओनर है वो हो सकता है किसी एंटरप्रेन्योर का कोई विजन हो, उसके ओनर एंटरप्रेन्योर है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हर एक चीज जो इंजीनियरिंग के जो आउटकम्स है, जो भी चीजें इंजीनियर्स बना रहे हैं, जो भी चीजें मेडिकल साइंस में जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, कोई किसी रिसर्चर ने कोई फार्मूला बना दिया, कोई वैक्सीन बना दिया, लेकिन उस वैक्सीन को बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी वो कॉमर्स है, वहां पर मैनेजर्स है, वहां पर एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो चल रही है वो सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर से नहीं चल रही है, हर एक का अपना अपना रोल है और हर एक रोल अपने आप में रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। और कैरियर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कैरियर हर एक जगह पे है। अल्टीमेटली द एंड गोल ऑफ एनी कैरियर क्या है, लाइफ में अच्छा अर्न करना, अच्छे लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें जो पॉसिबल है, जो इंसान एस्पायर करता है उन चीजों को पाना, पैसा कमाना, घर गाड़ी बंगलो ये सभी चाहिए होता है। तो ये जो लाइफ के एस्पिरेशंस है, इनको पाने के बहुत सारे रूट्स है। जैसे अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए मैं फ्लाइट ले सकता हूँ, दिल्ली जाने के लिए मैं ट्रेन ले सकता हूँ, मैं बस ले सकता हूँ, किसी को मन करे तो रोड से साइकिल चला के, बाइक चला के भी जा सकता है। वो अलग अलग मोड्स है, पर आपका डेस्टिनेशन तो सेम ही है, आप किसी भी तरीके से जाओ, पहुंचना वही है जहां आपको जाना है। इसी तरीके से लाइफ में जो चीजें आपको अचीव करनी है वो है आपको अच्छा पैसा, नेम, फेम, मनी एंड ऑल दिस थिंग्स। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोई डॉक्टर बन के ये सारी चीजों को पाता है, कोई इंजीनियर बन के पाता है, कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, कोई मैनेजर, कोई अकाउंटेंट। अलग अलग तरीके से पाना आपको जो है वो आपको कॉमर्स से भी मिलेगा। ये पहले तो समझना पड़ेगा पेरेंट्स को भी। और इकोनॉमी किसी एक प्रोफेशन से नहीं चलती है, इकोनॉमी एक बैलेंस्ड चीज होती है जहां पर हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस होती है। तो ये पेरेंट्स जब समझेंगे तभी वो अपने बच्चों को समझा पाएंगे। और इस पर्सपेक्टिव में कॉमर्स एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर क्लास 10 के बाद कोई बच्चा कॉमर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट लेता है तो हमारी जो कोर पेपर होती है वो होती है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स। अगर हम लोग मेन कोर पेपर्स के बारे में बात करें, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10 के बाद कॉमर्स लेता है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे ये सारे के सारे
सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग असल जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं. अकाउंटेंसी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट इज डन इन रियल कंपनीज. तो हम लोग जब अकाउंटेंसी सीखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड में होती है, बड़ी बड़ी कंपनी करती है. इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखते हैं डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बस खाली रटने का कोई रट्टाबाजी का चीज है. ये सारी वो चीजें हैं जो बाद में जाकर अगर कोई एमबीए कर रहा है, वहां पर मार्केट रिसर्च करता है, मार्केट रिसर्च में जाता है, एमबीए मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ता है. तो जो चीजें हम लोग क्लास 11-12 में सीखते हैं बेसिक लेवल पे, यही चीजें एडवांस लेवल पे जाके आपको वापस एमबीए में भी सिखाई जाती है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं क्लास 11-12 जो है ये बेस बिल्डिंग है, ये फाउंडेशन है. और फ्यूचर में बच्चा कुछ भी करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एमबीए करे, या कोई भी दूसरे बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज है, एसीसीए, सीएमए, सीएफए, किसी भी कोर्स में जाए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. जैसा भी मैंने बताया, बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग ऊपर से जितनी भी खूबसूरत है, बिल्डिंग की मजबूती अंदर से नहीं आएगी. इसी तरीके से मैं हमेशा एक बोलता हूँ, अगर कोई फटे हुए दूध से अगर कोई चाय बनाना चाहे, वो कितना भी अच्छा कारीगर हो, चाहे वो डॉली चाय वाला क्यों ना हो, वो चाय नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपका इनपुट जब खराब रहेगा ना, तो आपकी आउटपुट की क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगी. तो क्लास 11-12 ये जो एज होता है ना बच्चों का, ये जो 2 साल होता है, यहाँ पर आप जो भी पढ़ते हो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. आपको ये समझ के पढ़ना चाहिए कि ये 2 साल मैंने चूज किया है अपने सब्जेक्ट को. क्लास 10 तक तो हमने सब कुछ पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, लेकिन क्लास 10 के बाद हमने खुद से सब्जेक्ट को चूज किया है, और जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है अब इसी के ऊपर हमारा आगे कैरियर बनने वाला है. तो 11-12 में मुझे बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन करना है. जो भी सब्जेक्ट मैंने चुना है उसको अच्छे से समझ के कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, जिससे आगे मैं जो भी करूं वहां पर मैं अच्छा कर पाऊं. तो 11-12 में अगर बच्चों की अकाउंट्स अच्छी होती है, इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, ये जो कोर अकाउंट्स के पेपर है, बिजनेस स्टडीज है, कॉमर्स, ये अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं वो 12 के बाद अगर सीए करे या एमबीए करे, किसी भी फील्ड में जाए, वो अच्छा ही करेगा. 11-12 में जिसने अपना बेस बिल्ड कर लिया वो हमेशा अच्छा करेगा. वो सीए बनेगा तो भी अच्छा करेगा, वो एमबीए करेगा फिर भी अच्छा करेगा, कुछ और भी करेगा, बैंकिंग में जाएगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा, किसी सेक्टर में जाएगा, खुद का बिजनेस करेगा, अच्छा करेगा. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसकी बन चुकी है, ये तो पक्की बात है. तो इस तरीके से क्या है कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे वो एक सेकेंडरी डिसीजन होता है. पहले क्लास 10 के बाद आपको क्या लेना है ये डिसाइड करना है. तो क्लास 10 के बाद साइंस किसे लेना चाहिए सर, पेरेंट्स अगर पूछते हैं हमसे, तो साइंस किसे लेना चाहिए मैं ब्रीफ में बताता हूं. अगर कोई बच्चा क्लास 5, 6, 7 के एज से अगर पढ़ाई में सीरियस है, बिना पेरेंटल प्रेशर के, बिना घर में मम्मी पापा के डांट और प्रेशर के वजह से, बिना पुश किए भी वो घर पे थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ता है, मतलब उसके अंदर सेल्फ सिंसियरिटी है, सेल्फ डेडिकेशन है, सेल्फ कमिटमेंट है. वो बच्चा पढ़ाई बर्डन की वजह से नहीं कर रहा, वो खुद में उसे मजा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ के उसे इंटरेस्ट आ रहा है. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन होता है, वो पढ़ाई करते हैं, उसे पढ़ के मजा आता है. अगर ऐसा कैटेगरी का बच्चा है, वो आपको ना 5-6 क्लास से दिख जाएगा. कुछ बच्चे होते हैं वो दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, खेलते हैं, इधर उधर करते हैं, पेरेंट्स उनको पकड़ के लाते हैं, बाबू पढ़ लो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ, एग्जाम आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, ये वो नहीं पढ़ते हैं. पढ़ेंगे भी तो किताब खोलकर बैठेंगे, दिमाग कहीं और चल रहा है, हर थोड़ी देर में फोन देख रहे हैं, हर थोड़ी देर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इतना सारा जो डिस्ट्रैक्शन के साथ जो बच्चे चलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को साइंस नहीं लेना चाहिए. क्योंकि साइंस आप 10 के बाद जोश में आकर ले लोगे तो इससे होगा क्या, आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप खुद को बाद में रिग्रेट करोगे, कहीं ना कहीं किसी को बोल नहीं पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फेडअप हो जाओगे. तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा सिंसियर है, माँ बाप भी उस चीज को ऑब्जर्व जरूर करते हैं घर पे कि मेरा बच्चा कैसा है, और बच्चों को भी सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए कि मैं किस कैटेगरी का बच्चा हूँ. क्या मैं अगर जरूरत पड़े तो 8-10 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकता हूँ. अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वो प्रेशर ले सकता हूँ, मैं प्रेशर वाले सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, जरूरत पड़ने पे 7-8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ सकता हूँ बैठकर, क्योंकि मैंने हमेशा से पढ़ा है, कोई नया बात नहीं है. मैं तो बचपन में भी अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल में हमेशा से रैंक होल्डर था, टॉपर था, अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट में था, तो हमेशा से मैंने पढ़ा है. मेरे 10 के एग्जाम्स भी अच्छे गए हैं, एक्सपेक्टेड जो बोर्ड रिजल्ट है वो भी अच्छे होने वाले हैं. ऐसे अच्छे स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप साइंस में जाओ. आप अगर हमेशा से मेहनत करते रहे हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, डेडिकेटेड हो, नो डाउट अगर आप जेई का प्रिपरेशन करो, नीट का प्रिपरेशन करो, आप अच्छा ही करोगे, वहां पर भी आपकी रैंक अच्छी आएगी. आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, आप अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तो फिर आपके लिए साइंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको जरूर करना चाहिए साइंस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते नहीं है जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डेडिकेटेड हो. ज्यादातर हम लोग देखते हैं सोसाइटी में वो बच्चे
लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, सिंसियरिटी सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर होता नहीं है, बस जो जैसे चल रहा है भगवान भरोसे चलने वाले लोग होते हैं। तो लास्ट में जब एग्जाम के कुछ समय बचे होते हैं तो लास्ट मोमेंट में स्टडी करते हैं, ओवरनाइट स्टडी करते हैं, मतलब पूरा साल तो रेगुलर स्टडी किया नहीं, अब एग्जाम के पहले रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनको धक्का मार बच्चे बोलते हैं हम लोग बातचीत में, कि मतलब इनको धक्का मार के पढ़ाना पड़ता है, पेरेंट पीछे लगे हुए हैं, टीचर्स ट्यूशन में बोल रहे हैं कि बाबू पढ़ लो, डांट रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तब जाके बच्चा किसी तरीके से 60-70%, 75% ला रहा है। अगर इस तरह का बच्चा ना, तो आपको एकदम 100% साइंस तो नहीं लेना चाहिए, साइंस तो एकदम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने धक्का मार मार के अपने आप को 10th तो पास करा दिया, साइंस में आप वो धक्का भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि साइंस के बाद सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट और टेक्निकल हो जाता है। जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स है, ये बहुत ही वास्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 9 एंड 10। तो आपका जो धक्काबाजी चल रहा था क्लास 10 तक, वो फिर भी संभल गया, आपने खुद को संभाल लिया। इसके बाद 11-12 में आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, नंबर बहुत बुरे आएंगे, और बाद में साइंस लेने के बाद अल्टीमेटली आपको बीबीए में आना पड़ेगा या बीकॉम में आना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10 के बाद जोश में आकर साइंस तो लेते हैं, या पेरेंट्स जोश में आकर उनको साइंस तो दिलाते हैं अपने बच्चों को कि नहीं बाबू तुम तो साइंस ही करो, क्योंकि मेरा सपना था कि हमारे घर पे कोई साइंस करे, या फिर मैंने खुद भी साइंस किया था, हमारे रिलेटिव में ताऊजी फूफा जी सब साइंस वाले हैं, या उनके बच्चे साइंस कर रहे हैं, XYZ जो भी रीजन हो, किसी भी रीजन से अगर बच्चे ने साइंस ले लिया या पेरेंट ने साइंस करा दिया, और वो धक्का मार बच्चा था, धक्का मार वाला कैटेगरी का, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं थोड़ा सा कैजुअल स्टूडेंट था, लीनियंट स्टूडेंट था, तो ऐसे बच्चे 12 के बाद आएंगे वापस, उन्हें हमारे यहाँ पर ही आना पड़ेगा, कॉमर्स वो स्विच कर लेंगे 12 के बाद, ये गारंटीड है। और अगर 12 के बाद भी स्विच नहीं किए, जैसे तैसे धक्का मार के 11-12 पास किए थे, वो इसी तरह से धक्का मार के इंजीनियर भी बन जाते हैं, किसी मीडियोकर कॉलेज में जाके बीटेक कर लेते हैं, वहां जाके बीटेक बन के इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपको उसके बाद भी मार्केट में अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी तो फंडामेंटली वीक है, आप तो साइंस वाले, मतलब आपने एक ऐसा हथियार उठा लिया जो आप चलाने के लायक ही नहीं हो। तो आपने धक्का मार के 10 जैसे तैसे निकाला, साइंस की कैटेगरी के थे नहीं, आपने साइंस ले लिया, उसके बाद जैसा तैसा रैंक लाकर आपने किसी एवरेज कॉलेज से जैसे तैसे इंजीनियर बन गए, तो आपको तो मार्केट में जॉब लगनी नहीं है। और ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जो मार्केट में आप सुनोगे बीटेक कर लिया पर जॉब नहीं है, ये वही कैटेगरी के बच्चे हैं जो धक्का मार के 10 और 12 पास किए, जबरदस्ती का बीटेक करके अपने आप को इंजीनियर बोल रहे सोसाइटी में, ताकि समाज में अपनी इज्जत बनी रहे, पर आता अंदर से कुछ नहीं है। जब कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर जो एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो मीट नहीं कर पाते। वहां पर वो ये नहीं बता सकते कि मैं तो इस वजह से लिया था साइंस और इस वजह से मैंने किया बीटेक, तो वहां पर उनको जॉब या तो मिलती नहीं है, या तो पैकेज बहुत ही कम मिलती है, जो उन्हें अंदर से बुरा लगता है कि यार मैंने बीटेक कर लिया, अपने आप को इंजीनियर बोलता हूँ और 15-20-25 हजार के जॉब करूँ, तो अपना सेल्फ एस्टीम और ईगो भी हर्ट होता है। लास्ट में उसे क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है एमबीए। तो बहुत सारे आप एमबीए के कॉलेजेस में जाओगे, आप देखोगे 50% स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के आपको दिख जाएंगे, या फिर बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में दिख जाएंगे, जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एसएससी दे रहे हैं। आप सोचिए ये सोसाइटी का सीन है, ये मैं आपको कोई अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। आज किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी अच्छे जो स्कोर कर रहे हैं, प्लेसमेंट जिनको मिल रही है, जो लोग क्रैक कर रहे हैं, ज्यादातर वो साइंस वाले बच्चे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने बीएससी बीटेक किया था, आखिर क्यों उन्हें बैंक में जॉब करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें एमबीए बाद में जाके करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें यूपीएससी एसएससी की तैयारी करनी पड़ रही है। द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि उन्हें पता ही नहीं था स्टार्टिंग में कि मुझे करना क्या है। आपका जब कैरियर पाथ पहले से डिसाइडेड नहीं होता, कुछ आपको पहले से पता नहीं होता, पेरेंट भी आपको गाइड नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो यही सारी चीजें होती है। जैसे जैसे चल रहा है सभी, वैसे वैसे हम लोग चलते हैं। कैरियर काउंसलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को समझना है कि व्हाई कैरियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। ये जो हम लोग अभी बैठकर बात कर रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं कि हम लोग घर पे बोर हो रहे थे, चलो कुछ करने के लिए नहीं था, तो चलो बैठ के आपस में एक वेब कॉन्फ्रेंस में कुछ टॉपिक लेके बातचीत करते हैं। नहीं, इसका एक अपना पर्पज है, एक रेलेवेंस है। कैरियर काउंसलिंग के वजह से बहुत सारी चीजें लाइफ में बदलती है। हम लोग आज जो भी है इस वजह से है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ डिसीजन लिया था। हमारे पास्ट डिसीजन का आउटपुट है, रिजल्ट है जो हम लोग आज हैं, और हमारे आज के डिसीजन का आउटपुट होगा जो हम लोग आने वाले फ्यूचर में होंगे। तो इसीलिए बच्चे जब गलत डिसीजन लेते हैं क्लास 10 के बाद, तो इसका असर उनको बाद में जाके 11-12 और आगे जाके देखना पड़ता है। और 12 के बाद जब वो और दोबारा गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे सीए किसी को करना नहीं है, किसी को उतना बैठने का आदत नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कोई कर रहा है सीए, या फिर किसी को देख लिए जो उसमें कर लिए, आपके अंदर ना वो कैलिबर है, ना आपने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा, ना आपको बैठने की आदत है, आपने कर लिया, या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं है, आपने मैनेजमेंट कर लिया, आपका एनालिसिस नहीं है, आपको चीजें समझ नहीं आती, आपने एमबीए कर लिया, तो अल्टीमेटली एमबीए बन के भी, सीए बन के भी आप बहुत अच्छा लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि एकेडमिक लाइफ एक अलग होती है, जब हम लोग स्कूल में कॉलेज में होते हैं वो एक अलग लाइफ होता है, जब हम लोग कंपनी में कॉर्पोरेट में होते हैं वहां पर एक अलग लाइफ होता है। कॉलेज में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है मार्क्स स्कोर करने के लिए, कंपनी में हमें रियल लाइफ सिचुएशन के साथ डील करके परफॉर्म करना पड़ता है, आउटपुट क्रिएट करना पड़ता है, ताकि
जो हमारे एम्प्लॉयर है उनको हम लोग रिजल्ट दे पाए, जिसके लिए वो हमें पे करते हैं, जिसके लिए वो हम उन लोगों ने हमें हायर किया है। तो ये दो चीजें का ना हमेशा से मिसमैच रहा है, इसीलिए इकोनॉमी में हम लोग बोलते हैं इतने बड़े पॉपुलेशन में आज क्वालिटी जो एम्प्लॉयबल कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज है वो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में मिसमैच कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एंड करूं अपने इस पूरे के पूरे बातों को, तो कैरियर काउंसलिंग, जो फर्स्ट लेवल ऑफ कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए वो क्लास 10 के बाद या क्लास 10 में होनी चाहिए। बच्चे किस कैटेगरी के हैं, उनका स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, उनका खुद का हैबिट्स कैसा है, ये सारी चीजों को एक बार हमें क्लास 10 में एनालाइज करना चाहिए। और इसके बेसिस पे क्लास 10 में पेरेंट को भी साथ में बैठकर ये सोचना चाहिए कि 10 के बाद बच्चे को किस सब्जेक्ट में डलवाना है, साइंस करवाना है, कॉमर्स करवाना है या ह्यूमैनिटीज में भेजना है। नॉर्मली मैं ह्यूमैनिटी कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता 10 के बाद। रीजन क्या है कि ह्यूमैनिटी में जो भी कैरियर ऑप्शंस है वो आप कॉमर्स के बाद भी आगे परस्यू कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप एक बार पहले ही ह्यूमैनिटी के सेक्शन में चले जाओगे 10 के बाद, आप कॉमर्स को कभी सीख नहीं पाओगे, आपकी फंडामेंटल वीक हो जाएगी। ह्यूमैनिटी के बाद आप कॉमर्स में नहीं आ सकते, लेकिन कॉमर्स के बाद आप ह्यूमैनिटी में आ सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लास 10 के बाद किसी भी स्टूडेंट को अगर स्ट्रीम चूज करना है या सब्जेक्ट चूज करना है, तो या तो वो साइंस होना चाहिए या तो कॉमर्स होना चाहिए, ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियरली, डेलिबरेटली, ओपनली मैं बोल रहा हूँ, ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए। मैं एकदम क्लियरली अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ ह्यूमैनिटी मत करो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, जितनी भी चीजें होती है, मैं नहीं बोल रहा ये गलत है, खराब है, पर मैं हमेशा से बोलता हूँ आप कैरियर के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्योंकि आप ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप फ्यूचर में कैरियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो। कोई भी इंसान मेरे ख्याल से आज स्कूल या कॉलेज का बच्चा होगा, वो पढ़ाई किस लिए करता है, द अल्टीमेट एम क्या है। पहले का तरह तो चल नहीं रहा है गुरुकुल या आश्रम जहाँ पर ऋषि मुनि खड़ा होकर पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं और वहां पर लोग आ रहे पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। पहले के टाइम में वो होता था, लोग ज्ञान के लिए पढ़ते थे, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई जॉब नहीं लेना था, किसी को कोई सीवी नहीं बनाना था। आज के टाइम पे हमें कॉलेज में जाने के लिए अपने मार्क्स दिखाने पड़ते हैं, किसी कंपनी में जॉब पाने के लिए हमें वहां पर अपना मार्क्स, परफॉर्मेंस, एकेडमिक्स शो करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आज आपका ज्ञान कितना है, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी एकेडमिक्स कितनी अच्छी है। कैरियर बनाना है, तो जब आप कैरियर के लिए पढ़ रहे हो तो आप एक चीज समझो ना कि मैं अपने ऑप्शंस को जितना वाइड रख सकूं उतना वाइड करूं। जब मैं साइंस को छोड़ देता हूं तो हमारे कैरियर के दो मेजर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग तो मैंने जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मैं उस कैटेगरी का बच्चा नहीं हूं, मैं उतना सिंसियर हूं नहीं, मैं मुझे पढ़ने की लंबे आवर्स तक आदत नहीं है, तो मैंने साइंस और इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दी। तो साइंस के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स के जो भी एवेन्यूज है वो तो आपके पास अवेलेबल है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के जो भी एवेन्यूज है वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो कॉमर्स लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कॉमर्स के ही फील्ड में जाना है। कल को आपका मन किया कि आप मुझे एडवोकेट बनना है, एलएलबी करना है, करो आप 11-12 ग्रेजुएशन कॉमर्स से करके भी आप एलएलबी करो। किसी को पॉल साइंस में जाना है, किसी को मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, किसी भी जगह पे जाना है, आप करो ना भाई। 11-12 आप पहले कॉमर्स से करो, सीधी बात है, 11-12 आप कॉमर्स से करो, फ्यूचर आप भले आर्ट्स में बनाओ, जिधर भी बनाओ। तो 11-12 तो मेरे ख्याल से आपको कॉमर्स करना चाहिए। उसके बाद सेकंड डिसीजन आता है क्लास 12 के बाद, अब आगे क्या करना है। ये लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होता है, अगर इसमें बच्चे ने गलती कर दी तो आने वाली पूरी जिंदगी उसे सफर करनी पड़ेगी। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बच्चे थोड़े मेच्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगेन पेरेंट का भी थोड़ा यहाँ सपोर्ट चाहिए। अगर बच्चा कॉमर्स में आया, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं कॉमर्स के हिसाब से काउंसलिंग बताऊंगा। अगर बच्चा कॉमर्स में आता है, क्लास 12 के बाद उसे अब डिसाइड करना है कि मुझे आगे क्या करना है। तो एक तो होती है जनरल एकेडमिक्स, यानी कि आपको आपके क्लास 12 के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री करनी चाहिए, बीकॉम या बीबीए कुछ भी, तो ये आपका एकेडमिक्स हो गया। साथ ही साथ आपको अपने कैरियर में एलिवेट करने के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहिए। अब ये प्रोफेशनल कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, 12 के बाद आप सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज आज इंडिया में काफी अच्छा मार्केट होल्ड करते हैं, जैसे कि एसीसीए है, जैसे कि सीएमए यूएस है, सीमा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, सीएफए है जो बच्चे लोग करते हैं, एफआरएम है। ये सारे कोर्सेज भी आज बहुत अच्छा मार्केट में परफॉर्म करे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी, बिग 4 इन कैंडिडेट्स को भी हायर करती है। तो 12 के बाद ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली करना चाहिए, बीकॉम या बीबीए। साथ ही साथ अगर आप अपने कैरियर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स साथ साथ में जरूर करो, टाइम भी सेविंग होगी, कैरियर भी आपका एलिवेट होगा। अब सवाल ये कि सर कौन सा कोर्स करें, सीए करें या एमबीए। एमबीए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे करना चाहते हैं। तो सीधी बात है, सीए आपको तब करनी चाहिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मुझे अगले 5 साल अपने लाइफ के, मिनिमम अगले 5 साल मुझे इस प्रोफेशन को डेडिकेटेड होके दे देना है, मेरे जिंदगी के 5 साल में इसे दे देना चाहता हूँ। मतलब आपका ये प्रायर माइंडसेट होना चाहिए, प्रायर कमिटमेंट होना चाहिए, तभी आपको करना है।
इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरे पिताजी का सपना था, मेरे दादाजी का सपना था, या मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी ने कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा जॉब पा लिया, कि कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिस फर्म चला रहा है। ये सारी चीजें सोसाइटी को देखकर, दुनिया को देखकर अपने को लाइफ के डिसीजन नहीं लेने होते हैं। हर किसी की लाइफ की अपनी जर्नी होती है, अपने फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन होते हैं, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनका 11-12 का फाउंडेशन अच्छा है, अकाउंटेंसी पढ़ के आपको अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ आती है, आप अकाउंटेंसी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, और आप पढ़ सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो आप बार बार पढ़ सकते हो, लंबे आवर्स तक पढ़ सकते हो, ऐसा आपका माइंडसेट है, तो डेफिनेटली आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो या सीएमए या सीएस जैसे कोर्स में जाओ। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, मैं स्टूडेंट तो अच्छा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, कम्युनिकेशन वाइज मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने उतना ज्यादा कभी लॉन्ग आवर्स स्टडी नहीं किया, मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि मैं 6-7-8 घंटे पढ़ लूँ या बहुत लंबे समय में पढ़ लूँ, प्रेशराइजिंग सिचुएशन में मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो फिर सीए आपके लिए नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए सर, आपको सीए के इक्विवेलेंट डिग्री की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि ACCA। ACCA इज नथिंग बट, बोल सकते हैं आप, यूके की सीए, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के फील्ड में मेनली काम करते हैं। मतलब जो कोर एरिया होता है, देखिए पढ़ने का तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ पढ़ता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इनके कोर वर्क एरियाज होते हैं वो अकाउंट्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। तो ये जो 3 एरियाज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसमें काम करते हैं, इन्हीं एरियाज में इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज में जो ACCA होते हैं या जो CPA होते हैं, इन लोग भी काम करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस है। ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि ये CA से इजी है, इजी नहीं है, सिलेबस जो है उतना ही डिफिकल्ट है, वॉल्यूमिनस है, लेकिन इसकी पासिंग क्राइटेरिया जो है वो थोड़ी सी लिबरल है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है, इन द सेंस कि बच्चों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी पास करना होता है और ग्रुप वाइज भी पास करना होता है। लेकिन जो फॉरेन के कोर्सेज होते हैं, यहाँ थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है, आप एट ए टाइम एक एक सब्जेक्ट करके आराम से पास कर सकते हो, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो अप्रोच है, जो पैटर्न है, वो भी थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। तो ये सारी चीजें प्रकाश सर पढ़ाते हैं, वो अभी आपको डिटेल में भी बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहिए। अभी पहले तो इन सारे कोर्सेज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में अब मार्केट में बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, आप CA, CS, CMA जैसे कोर्सेज में जाओ जो इंडिया की है। अदरवाइज आप इक्विवेलेंट कोर्सेज में जाओ जो फॉरेन की है और इक्वल वैल्यू होल्ड करती है। बड़ी बड़ी कंपनी, MNCs, बिग 4 बहुत अच्छे पैकेज के साथ इन्हें आराम से ले लेती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अकाउंटेंसी के फील्ड में, टैक्सेशन या मैनेजमेंट, ये सब ऑडिटिंग के फील्ड में नहीं जाना, ये सारे मेरे कोर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सब अच्छा है, तो फिर आप एक काम करो, आप मैनेजमेंट के फील्ड में चले जाओ। और मैनेजमेंट के फील्ड में अगेन हम लोग चूज करते हैं MBA के बारे में धीरज सर ने भी थोड़ी देर पहले काफी कुछ डिटेल में बताया। पर MBA बेसिकली क्या है, MBA इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन कैसे लेना है। अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक डेजिग्नेटेड मैनेजर होता है, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर। ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं, इनको अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के डिसीजंस लेने होते हैं, और यहाँ पर MBA का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। MBA में भी कई तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, डेटा साइंस, दुनिया भर की चीजें, लॉजिस्टिक, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे अलग अलग जो रोल्स होते हैं ये काफी रिलेवेंट होते हैं। और आज के जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, अब्रॉड में, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से ये सारी चीज़ों को कराते हैं। अगर आप इसमें करते हो तो MBA भी आपको बहुत अच्छा कैरियर दे सकता है। तो ये जो कैरियर है ना, ये इतना डिटेल में मैंने बताया क्योंकि मेरे को पूरा क्लास 10 से लेकर पूरा मास्टर तक का मैंने ब्रीफ कर दिया। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, 1-1.5 घंटा तक भी चलता रहेगा ये सारा कहानी, लेकिन मैंने ब्रीफ में बताया। अब एक लास्ट चीज बताकर मैं ये अपने पार्ट को एंड करूंगा। आखिर इतना सोचना क्यों है, ये क्यों नहीं अपने रिलेटिव को देखकर डिसाइड कर लेते हैं। अगर अपना पड़ोसी में कोई लड़का MBA कर लिया, CA कर लिया और वो लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो क्यों नहीं अपने वो करते हैं ना। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई एक सक्सेसफुल पर्सन के ब्लूप्रिंट को अपने फॉलो करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते। कोई डॉक्टर बन के अच्छा कर रहा है तो हम भी डॉक्टर कर लेते हैं, कोई MBA कर रहा है, CA कर रहा है तो अपने भी वो कर लेते हैं। क्यों अपना दिमाग लगाना, क्यों ये सब सोचना है। देखिए, कैरियर मान के चलो कोई भी इंसान कुछ भी करता है, CA, MBA कुछ भी करे, अप्रोक्सीमेटली 24 या 25 के एज तक वो मार्केट में, कॉर्पोरेट में अपने आप को लॉन्च करता है। यानी 24-25 साल तक हर इंसान प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाता है और वो जॉब के लिए मार्केट में उतर जाता है। और आप मोटा मोटी करीब 60 साल के एज तक आप
जॉब करते हो, जो कि रिटायरमेंट एज होती है, यानी कि आप सीए एमबीए कुछ भी करते हो, 24 से 25 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इतने एज तक आप मेच्योर्ड हो जाओगे, आपको जो भी पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, वो आप ले चुके रहोगे। और 25 के एज में अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी रोल पे, किसी भी पोजीशन पे जॉब करने के लिए, वो आपको 60 साल तक करना पड़ेगा। कंपनी बदलती रहेगी, जॉब पोजीशंस बदलते रहेंगे, सैलरी पैकेज बदलती रहेगी, पर एरिया वही रहेगा। अगर आपने किसी के बोलने पर या किसी के दूसरे के किसी बताने पर, किसी को देखकर इंस्पायर होकर अगर आपने रैंडमली कोई भी एरिया चूज कर लिया, तो याद रखिए 25 साल से 60 साल, 35 ईयर का स्पैन है। तो कैरियर कोई ऐसा नहीं कि 1-2 साल का चीज है, कैरियर का मतलब होता है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स तक आपको उसको या तो एंजॉय करना है या तो भुगतना है। अगर आपने अपने लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लिए हैं, एकदम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के आपने लिया, अच्छे से सोच समझ के प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू आपने लिया, तो फिर आप आने वाले अपनी जिंदगी के 35 साल उसको एंजॉय करने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे क्या ना, जॉब तो कर रहे हैं पर अपने जॉब से खुश नहीं है, मजबूरी में जॉब कर रहे, बोलते नहीं है, लेकिन अपने बॉस से खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है, उन्हें जो दिया जा रहा है वो है नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन है नहीं। लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो जॉब का इतना प्रेशर ही है, वो है ना तेना, दुनिया भर की चीजें चलती रहती है। तो ये इसका रीजन यही है। आप अपने काम से खुश क्यों नहीं हो? मैं अपने काम से खुश हूँ, प्रकाश सर अपने काम से खुश है, क्योंकि हम लोग एक सोच के साथ अपने इस फील्ड में है। ऐसा नहीं कि किसी को देखकर कोई टीचर अपने मोहल्ले में घूम रहा था, आपने बोले चलो टीचिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर अपने को लगा कि पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अपने पास दूसरे ऑप्शंस थे जिनको छोड़कर मैं यहाँ पर आया, सर यहाँ पर आए। तो जब आप अपने कैरियर को खुद से चुनते हो, आप खुशी से अपना हर काम करते हो, आप कभी बोर नहीं होते और लाइफ में आप बहुत अच्छा करते हो। इसी तरीके से 25 ईयर्स के बाद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के इंडस्ट्री में जाए, एमबीए बन के जाए, इंजीनियर बन के जाए, कुछ भी बन के जाए, अगर आपने वो सोच समझ कर अपना डिसीजन लिया, तो 25 साल से लेकर रिटायरमेंट के एज करीब करीब 35 साल तक, जो ये 35 ईयर्स की आपकी कैरियर की जर्नी है। कैरियर की जर्नी तो स्टार्ट वही होती है तब जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, उसके पहले तो कैरियर हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये 35 ईयर्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे, नहीं तो फिर ये एक सफरिंग होगा कहीं ना कहीं। बस आप इसको अपनी जिंदगी को झेलोगे, ढोगे, एंजॉय नहीं करोगे। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू प्रकाश सराफ सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Suraj ji. Thank you. It was interesting. Good. So Thank you, thank sir. you, sir. We really appreciate all those thoughts. And now it's time to hear from someone who is truly a guiding force for thousands of students, Prakash Saraf, sir, founder of Saraf Academy. A chartered accountant by qualification, he has taught over 2 lakh students in India and abroad and continues to personally mentor students across global finance qualification like CA, ACCA, CPA, CMA, CIMA, and EA. He will now speak about how to evaluate these professional courses and which ones suit different kind of students. Over to you, Saraf sir. Thank you. अभी जो अपने लास्ट 1 आवर से डिस्कशन कर रहे हैं, उसका अगर हम लोग लास्ट में निचोड़ निकाले, तो धीरज जी का ऐसा बोलना था कि अगर आपको एमबीए वगैरह करना है, तो आपको मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। अदरवाइज आप नॉर्मली एमबीए आईएम वगैरह ये सब मत सोचिए, कुछ और भविष्य बनाइए। दैट वाज द नेक्स्ट सेल। सूरज जी ने अभी जो इतना बात बोला कि करियर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो नॉर्मल नहीं है, और आपको अपना कैलिबर के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपना इंटरेस्ट के अनुसार कुछ भी करना है वो चुनना पड़ेगा, जिससे कि आप उस चीज में बेटर कर पाए। मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोई भी चीज करेंगे, अगर मजा नहीं आता है तो सक्सेस तो मिलना ही नहीं है कभी, तो मजा तो आना ही पड़ेगा। नाउ एमबीए, इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेस, इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेस करना क्या है? पहला एडवाइस है, सब पढ़ाई का काम है, तो अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं करना है। और बहुत कुछ है भविष्य में, जैसे अभी सूरज जी ने बोला, आपको गाना अच्छा लगता है, डांस जो लगता है अच्छा वो करिए, पढ़ाई से बाहर आ जाइए। कोई भी चीज आप करेंगे अगर मन नहीं लग रहा है तो आपको उसमें सक्सेस मिलना ही नहीं है। सो बाद में वो करेंगे, अपना पैशन फॉलो करेंगे, अभी से ही फॉलो कर लेते हैं। अब आपको मन में लगता है मेरे को कॉमर्स अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो साइंस के लिए मैथ्स तो बढ़िया होना पड़ेगा।
जैसे नॉर्मली जब हम कोई भी स्टूडेंट से मैं डील करता हूं तो वो फोन करके क्या बोलता है, सर मैथ्स तो नहीं है ना इसमें, मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता। यानी कि वो कॉमर्स में किस लिए आ रहा है, क्योंकि उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता। यानी कि अपने कॉमर्स एरिया में अगर जाते हैं साइंस को छोड़कर, यानी कि मैथ्स अपने को नहीं पढ़ना है, ये श्योर है। चाहे आप सीए करें, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्स करें, चाहे एमबीए करें, मैथ्स वहां नहीं है। एमबीए में कैट फैट जाएंगे तो एक बार क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं। तो अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे करियर गाइडेंस है, अपॉर्चुनिटीज है जो अपने कर सकते हैं। अपने स्टार्ट कर रहे हैं 10th के बाद। 11th और 12th में अगर आप स्कूल में हैं, वहां पर 11th 12th होता है, आप वहीं 11th 12th पढ़ेंगे। आपको डिसाइड करना है साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ये और क्या फील्ड है। अगर मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता, साइंस में मत जाइए। कॉमर्स दूसरा फील्ड है, बिकॉज मेरे को आर्ट्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। कॉमर्स में जाइए, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इंटरेस्ट पहले है कि नहीं ये अपने को जान लीजिए। 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप एमबीए तो नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज, सीमा, एसीसीए, एक सीएमए इंस्टीट्यूट का एफएमडब्ल्यूए है, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते। करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। करना तब है जब थोड़ा बहुत पढ़ाई में मन लगता है, और जो भी आप 11th 12th में प्रोफेशनल कोर्स करेंगे वो आपके 11th 12th की पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, बहुत ज्यादा अलग नहीं होंगे। तो 11th 12th भी कॉमर्स अच्छा जाएगा और आपका एक नॉलेज प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करने से ग्रो बेटर करेगा। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग एवरीबडी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी देन ओनली। 11th 12th में ही अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, आपके मार्क्स के बेसिस पे जो अच्छा कॉलेज है आप वहां ज्वाइन करिए। ये मत दुखी होइए कि मेरे को ये कॉलेज नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज अगर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज कमल कीचड़ में ही खिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका कॉलेज कीचड़ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वट एवर मार्क्स आई स्कोर, उसके बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को उसमें आगे करना है, गड़बड़ी वो आगे सुधारना है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा एडवाइस है कि अगर आपका पढ़ने में थोड़ा बहुत मन लगता है, नॉट फोर्स, मन से आप 2-3 घंटा दिन में पढ़ सकते हैं मन से, तो आप इंटरनेशनल कोर्स एसीसीए, सीमा, एफएमडब्ल्यूए 11th 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स के साथ फॉलो करिए। अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा स्किल डेवलप होएगा। जब आप 12th क्लास कर लिए, अब आपको कॉलेज जाना ही है, वापस से मार्क्स डिसाइड करेगा कौन सी कॉलेज में जाएंगे। मार्क्स अच्छे हैं, अच्छी कॉलेज में एंट्री हो जाएंगे, नहीं तो बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज से आपका लाइफ एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर कॉलेज अच्छी भी है तो भी आपको खुद से अपना करियर डिसाइड करना है, खुद से अपना करियर बनाना है। तो 12th के बाद अगर आप मैथ्स वगैरह में अच्छे हैं, एमबीए करने का मन है, तो आप अपना 12th के बाद फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर और ज्यादा रुझान बढ़ा दीजिए, उनको और बढ़िया से पढ़िए। बाद में कैट का एग्जाम दीजिए, जैसे धीरज जी ने बोला सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 2 बार, और कैट में अच्छा स्कोर करके अगर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी एमबीए का मिलता है बढ़िया यूनिवर्सिटी से, आप उसको करिए। लेकिन मेरा थोड़ा यहां से डिफरेंस थोड़ा सा धीरज जी से है कि अगर आपका एमबीए बढ़िया जगह से नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो लोग पढ़ते हैं एसीसीए, सीमा, सीएमए, सीपीए, 80% प्रोफेशनल्स, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, फिर उसके बाद वो एसीसीए, सीमा, सीपीए करने आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब उसका मास्टर्स किया हुआ है तो वो फिर से ये प्रोफेशनल कोर्स करने क्यों आ रहा है? यानी कि ये एक सिंपल डिफरेंस दिख रहा है, उसने जहां से एमबीए किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस उसको लाइफ में नहीं मिल रहा है। तो उससे बेटर है अपने प्रोफेशनल कोर्स में पहले ही चले जाते, उतना अपने मेहनत एमबीए मास्टर्स में किए, उससे बढ़िया अपने प्रोफेशनल कोर्स करते, 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाता और उसका वैल्यू मेरे को बहुत ज्यादा मिलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 15-20 सालों का, कि इधर उधर से एमबीए करने नहीं जाना है। केवल ये बनने के लिए मेरे को बगल में एमबीए एमकॉम लिखना है, उससे कोई फायदा नहीं। आपको एमबीए एमकॉम तभी करना है जब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी मिलती है।
हाँ, एक कैटेगरी का स्टूडेंट और है जिनको फेल होने का डर बहुत लगता है। प्रोफेशनल कोर्स में फेल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एमबीए उसको आईआईएम से नहीं हो पा रहा है, बढ़िया यूनिवर्सिटी से। अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा? उसको जीवन में जॉब करना ही है, घर में पापा मम्मी का कोई बिजनेस नहीं है। तब इन दैट केस वो थोड़ा सा लो ग्रेड जगह से एमबीए करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपना करियर बना सकते हैं। बट वो एकदम थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, प्रोफेशनल्स के लिए, जिन लोग प्रोफेशनल कोर्स से डरते हैं, पास नहीं हो सकते, मास्टर्स उनका बढ़िया जगह से हो नहीं सकता, तो उनको लोअर ग्रेड का यूनिवर्सिटी से एमबीए करके अपना करियर आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनका करियर का पहले का ये प्रॉब्लम है, उसको अब तो ठीक कर नहीं सकते। अब आगे उनको जहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले वहां एमबीए करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं जिसका मार्केट में अच्छा खासा वैल्यू है, बिकॉज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो आप क्लास 10 से भी सोच सकते हैं, 12 के बाद भी सोच सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी सोच सकते हैं। पढ़ाई में मन लगता है तब यू आर रेडी टू स्टडी 2-3 आवर्स रेगुलरली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है इंडियन सीए ही करना है, बिकॉज जैसे धीरज जी ने बताया और सूरज जी ने बताया, सीए का पासिंग क्राइटेरिया का प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप वाइज एग्जाम। आप एक साथ 4 एग्जाम दोगे, एक में प्लंग कर गए, आपको चारों पेपर फिर देना है। इंटरनेशनल कोर्सेस में ये डिफरेंस, आपको पेपर वाइज एग्जाम देना है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्स मगिंग के बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, चीजें लॉजिक से समझाई जाती हैं, सीजो का समझ के आंसर देना है, नॉट दैट रट्टा मार के आंसर देना है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में मजा आता है। तो इंटरनेशनल कोर्स जो रिनाउंड है, कोई भी नहीं, अच्छा कोर्स जो रिनाउंड है, जिसका 100-150 साल से एग्जिस्टेंस है, जिसका वर्ल्ड में वैल्यू है, इंडिया में वैल्यू है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो कोई भी इंटरनेशनल कोर्स 10th के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। अच्छी खासी वैल्यू है इंडिया में, ग्लोबली। उनको करिए, उससे आपको फायदा होगा। अगर आपको जॉब में जाना है तो भी कॉमर्स हेल्प कर रहा है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्यूशन सेंटर चलाना है, लोगों को प्लेस करना, करियर बनाना है, ऐसे एरिया में जाना है, या आपको कोई बिजनेस करना है जिसमें आप प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले, सब जगह आपको कॉमर्स का नॉलेज चाहिएगा। कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर अपना अकाउंट्स खुद नहीं बनाता है, उसको कॉमर्स वाले के पास ही जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर मान लीजिए साल में 10 करोड़ रुपया कमा रहा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका अकाउंटिंग तो एक कॉमर्स वाला आदमी ही करेगा ना। तो डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन अपना अकाउंट्स, अपना रिटर्न खुद नहीं लगा सकता, उसको कॉमर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सूरज जी ने बोला ना, साइंस वाले लोग कॉमर्स वाले को बेवकूफ समझते हैं, उसको ये बोलना है तुम्हारा अकाउंट्स कौन बनाने वाला है। तो अब कॉमर्स वाला को अकाउंट्स तो आना ही पड़ेगा यार। जैसे सूरज जी ने बोला, अगर अकाउंट्स आप नहीं समझते तो फिर कॉमर्स में तो आप है ही नहीं ना। ना तो आप साइंस में, ना आप कॉमर्स में, ना घर का ना घाट का, कहाँ के रहे आप? कहीं के नहीं रहे। तो आज अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अकाउंट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? इट्स अ मेन सब्जेक्ट। अकाउंट्स में मैथ्स नहीं है, कॉमर्स में मैथ्स नहीं है। जो मैथ्स से डरते हैं उनको ये समझना है, कोई भी सीए वगैरह में भी मैथ्स नहीं है। फाउंडेशन में जबरदस्ती का है, सीए फाउंडेशन में मेरे को नहीं लगता वैसे मैथ्स होना चाहिए। एसीसीए, सीमा, सीएमए, कहीं पर कोई मैथ्स नहीं है सीपीए में। तो आपको अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, फोकस कर सकते हैं, तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करके बहुत फायदा होएगा। अब एग्जैक्टली आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं, कौन सी कॉलेजेस वहां पर हैं, आपके मार्क्स क्या आए हैं, कट ऑफ क्या है, वो आपको देखकर ही डिसाइड करना है। जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं कोई मार्क्स से मतलब नहीं है, हर कोर्स में एंट्री है, आपको मन से पढ़ना है। आप नहीं पढ़ सकते तो प्रोफेशनल कोर्स नहीं होएगा। तो जो मैंने सबसे शुरू में बोला, लास्ट में वही बोलूंगा, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है, आप 2-2.5 घंटे भी मन से नहीं पढ़ सकते, तब कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई एमबीए कुछ नहीं करना है। बेसिक अपना 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए और अपना जो इंटरेस्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसको करके आगे बढ़ाइए। तब पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं जाना है, सबके लिए पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई एक तपस्या है। इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव दैट हार्ड वर्क, देन इन दैट केस देयर इज नो स्टडी पॉसिबल। केवल 12th और बीकॉम करके जो भी बीबीए वगैरह करना है, खत्म। बीबीए बीकॉम में मेरे को बीकॉम बेटर लगता है,
ट्रेडिशनल है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज कवर होता है जो कि बीबीए में कवर नहीं होता. तो आई विल एडवाइज स्टूडेंट्स शुड बी डूइंग बीकॉम आफ्टर क्लास 12th इन कॉमर्स फील्ड, नॉट बीबीए. बट दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन. मे बी यू हैव कि आपको एमबीए जाना है तो बीबीए करने से कोरिलेटेड रहेगा. दैट्स अदर थिंग. दैट्स यू कैन से माई एडवाइस एंड आवर एडवाइस. नाउ अगर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है. जस्ट नाउ आफ्टर 12th सैकत ने पूछा कि मैं क्या करूं. मैंने अभी बोला बीबीए के बाद एमबीए थोड़ा कोरिलेट करता है, लेकिन बीबीए के अंदर बहुत सारा कॉमर्स का सब्जेक्ट डील नहीं होता. तो मेरे को पर्सनली लगता है आपको 12th के बाद बीकॉम ही करना चाहिए, और उसके बाद आप एमबीए करें या प्रोफेशनल कोर्स करें साथ साथ, वो आपके ऊपर है. बट आफ्टर 12th यू शुड बी गोइंग फॉर बीकॉम और द कॉमर्स फील्ड, जिसको बीएमएस वगैरह भी बोलते हैं वो भी, लेकिन उसमें भी मैथ्स आ जाता है. तो मैथ्स से प्यार नहीं है तो मैथ्स वाला एरिया छोड़ दीजिए. बेसिक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता है, उतना मैथ सबको आता है. उसके बाद हार्ड कोर मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब में नहीं जाना है जब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है. कॉमर्स के थ्रू आप अपना लाइफ अच्छे से सेटल बढ़ा सकते हैं, और जो भी आपको जिंदगी में इच्छा है, गाड़ी होना चाहिए, बाड़ी होना चाहिए, वो सब हो जाएगा. कॉमर्स करके भी सब कुछ मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट होगा तब. सो किसी को अगर कोई डाउट है, एनीथिंग टू आस्क, प्लीज आस्क, so that I can answer, Suraj ji can answer, he is also there, and we can wind up, because already we have said so many things in last 1 hour 20 minutes. So if anything, any specific query, anybody, please ask so that we can clear your doubts. Anyone, Dennis, anybody who would like to ask any question? Daksh, Sushant, anyone? Tanisha, any question you would like to ask? You can unmute and you can ask your question. You don't need to type. Yes, you can do that. Tanisha has a question. Yes. If we choose ACC after 12th, is this a profitable and a successful career option after some years? According to me, 100% yes. Not that because I am teaching, you don't take classes from me. You do self-study or somewhere else. But definitely it will be helping in the growth of your career like anything. But don't study just for passing the exam. Study with concept, skills, knowledge, which you can apply in your business or anywhere where you will work. You will be able to take your career to any level which you can imagine. So 100% the best choice, best advice, after 12th, you go for ACCA. There is no problem. Anyone else would like, I hope that answers your question, Tanisha, if you want a follow up anything. And if anyone else wants to ask a question, okay, Daksh has a question. He's confused between ACCA and CMA, which one he should pursue? I cannot say ACCA is good, CMA is bad, or CMA is good, ACCA is bad. That answer I cannot give, because I don't think so that is a logical answer. ACCA will take more time to complete after class 12. CMA will take less time to complete. ACCA will be slightly more costlier as compared to CMA. But ACCA will have an advantage that each subject is different. But in CMA, they have 2 parts, but each part is composed of 6 subjects. So it is not easy to crack. According to me, ACCA is, as compared to CMA, easier to pass. In both the courses, you will study accounts, business, finance, management, costing, then strategic decision making, auditing, internal control. So both are good, both are covering the same areas. We can't say that this is good or bad. If you want to go financial accounting, auditing, then ACCA will be much better, because CMA is management accounting, will be dealing with more management part. So that way it will be better. These are the differences. But I can't say that ACCA is better, CMA is bad, CMA is better, ACCA is bad. ऐसा नहीं बोल सकता यार. ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सो थोड़ा इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग को वैल्यू बेटर देते हैं. बट ग्लोबली इंडिया के बाहर अकाउंटेंट बोलते हैं, अपने ऐसा नहीं बोलते चार्टर्ड या मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सो बाहर दोनों बराबर वैल्यू ही होएगा. ACCA का वैल्यू आपको इंडिया में और यूरोप
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ज्यादा बेटर मिलेगा। CMA का वैल्यू आपको इंडिया में और US, कनाडा वगैरह ज्यादा बेटर मिलेगा। These are the differences by which we need to decide. That I believe should clarify your doubt, Daksh. And in fact, even after this, जैसा सर ने बताया, जैसे धीरज जी ने भी अपना नंबर दिया, सूरज जी ने भी बताया, आप लोगों को कोई भी डाउट आप हमें classes@saraf.academy में आप मेल ड्रॉप कर दो, हम लोग आपसे वापस कनेक्ट करके आपका सारा डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए अभी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू विद दैट। एंड फिर से लास्ट आपका एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, सो आकांक्षा। Thank you, sir. That was enlightening as always. And so, guys, thank you to our speakers and everyone who joined today. We hope the session will clear your doubts and help you plan for your next steps. I would like to book a free 1-to-1 counseling session if you guys are looking for that. Just drop us an email at classes@saraf.academy. Our team will reach out and guide you personally. Stay connected with us on Saraf Academy's platform for webinars and updates. Wishing you all success in your journey ahead. Thank you and Thank you, Suraj. Thank you, Vinay. Thank you, Khancha. Thank you all for giving your time. We are always there to help you. Connect for any help required. We are always there. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Yeah.